ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਝਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਚਾਕਰ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ, ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਵੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ,
मैनू बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। हर कोई कह रहा मैनू ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। पर पातशाह जी कहते सच्चाई की है, बंधन बांधिया सब जग पवै। हरेक कोई माया के मोह दे विच बझिया होया। एक परमात्मा ही है ਜਿਹੜਾ माया के मोह दे विच बझिया नहीं, बाकी सारा संसार ही माया के मोह दे विच बझा होया है। तो उदां कह रहे हरेक कोई कह रहे मैनू ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। मैं तो बड़ा ज्ञान वाला, मैं बड़ा ध्यान वाला। दो चीज़ां ज्ञान ते ध्यान, ये दो चीज़ां ही बंदे नूं पार लगा दिंदियां। एक ज्ञान एक ध्यान, दो खंभ है। जे किसी ने तरना है, उड़ान भरनी है, ये दो खंभ है। एक ज्ञान है, दूजा ध्यान। जे ज्ञान भी होवे तो ध्यान नहीं ला रहा, फिर भी किसी काम का नहीं। ध्यान है, ज्ञान कोई नहीं, अखरां की सोझी कोई नहीं, नाम का कोई पता नहीं, जपण का कोई तरीका पता नहीं। ध्यान तो लग रहा, ध्यान ला रहा, पर पता नहीं, ज्ञान है ही नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सूझ नहीं। दोवें चीज़ां होनियां चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए है, अखरां का बोध भी होना चाहिए है। ध्यान फिर वो शब्द का उचारण करदियां होया ध्यान भी जुड़ना चाहिए। सिमरन करन वाला भी होवे, ध्यान जोड़न वाला भी होवे, बैठ करके प्रैक्टिकल करन वाला भी होवे। दो चीज़ां हैं। कल्ला ज्ञान 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 करी जाना, उपदेश ही करी जाना, तो ध्यान कोई नहीं ला रहे। पातशाह जी कहते कोई फायदा नहीं। दोए चीज़ां होनियां चाहिए, फिर सच्चा सेवक अखवाया जा सकता है। एक ज्ञान है, सुन के ज्ञान दो तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अंदर जाता बंदे दे। एक हुंदा सुन लेना, दूजा आप पढ़ के वेखना। सुन आप पढ़ना, पढ़ के ज्ञान लेना। एक हुंदा सुन लेना। जिन्हां नूं पढ़ना आउंदा है वो पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। कईयां नूं पढ़ना नहीं आउंदा, वो सुन के ज्ञान लै लैंदे, सुनते आ ज्ञान। तो फिर जो सुनिया जां तू पढ़िया, गुरबाणी नूं पढ़िया, गुरबाणी नूं सुनिया, विचार नूं चाहे पढ़िया, विचार नूं चाहे सुनिया, कहते इहदा फिर ध्यान हुण इनू ध्यान दे विच लैके आउणा है। बैठ करके इनू अपने ध्यान इकागर करना, परमेश्वर दे नाल लाउणा। अपने ध्यान दे विच बचनां नूं लैके आउणा, वो बचनां नूं अपने ध्यान दे विच वसाउणा है, उहदा फिर प्रैक्टिकल करना है। फिर पातशाह जी कहते फिर सच्चा सेवक अखवाया जा सकता है। तो हुण पातशाह जी किरपा कर रहे ने, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। हर कोई कहता मैं ज्ञानवान बड़ा हाँ, बड़ा मैं ज्ञानी हाँ, बड़ा मैं ध्यानी हाँ। पर पातशाह कहते असल सच्चाई की है, बंधन बांधिया सब जग पवै। सारा संसार ही माया के मोह दे विच बझिया होया है। अगे पातशाह जी किरपा कर रहे ने, सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। सेवा करे सो चाकर होए। हुण पातशाह जी कहते चाकर बनना चाहुंदा है, चाकर बनने वास्ते फिर करना की पएगा। आपां कहने असीं ते चाकर हैं जी, गोबिंद दे असीं प्रभु दे अपने सतगुर दे चाकर हाँ। फिर पातशाह जी कहते चाकर बनने वास्ते की करना पऊ, सेवा करे सो चाकर होए। एक तो परमेश्वर की सेवा, गुरु की सेवा करनी पएगी, ते नाल ही ये जिहड़ा होमिਆਂ का त्याग करना पएगा। होमिਆਂ का त्याग करना पेगा, गुरु की सेवा करनी पैनी है। होमिਆਂ का त्याग करके बाहरले रसां दे विचों मन नूं हटा के अंतरीव घर दे विच टिके रहना। फिर पातशाह जी कहते सो चाकर होए, फिर वो चाकर बन सकदा। ते जिहड़ा बन गया, जल थल महियल रव रहया सोए। पातशाह जी कहते धन गुरु नानक देव महाराज कहते जिहड़ा फिर सच्चा चाकर बन जाता है, इस पदवी ते पहुँच जाता है। जल विच, इस जल दे विच, धरती ते आकाश विच रव रहया सोए। कहते सारियां दे विच ही, जल विच भी, धरती ते भी, आकाश विच भी, सारी थावां ते वो वसदा नज़र आउंदा है। हर पासे परमात्मा नज़र आउंदा है। जिहड़ा चाकर बन जाता उसकी पातशाह जी उदाहरण दे रहे भी, उन्होंने इदां नज़र आउंदा, जल दे विच भी उन्होंने, धरती ते भी उन्होंने नज़र आउंदा है, आकाश विच भी, सारे पासे भी भाव के परमात्मा ही नज़र आउंदा है। अगे पातशाह जी किरपा कर रहे हैं, धन गुरु नानक देव महाराज, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हुण अखीरलियां पावन पंक्तियां दे विच सतगुर जी ने बड़ी सोहनी विचार समझाई है
कि जिहड़ा होमैं दा त्याग कर दिंदा ना असल दे विच, जिहदी होमैं मर गई है, होमैं नूं मार लिया जिन्हें अपने अंदरों, उही ये बचन कहूगा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। कि मेरे नालों मैं होरनां नालों चंगा नहीं, होरनां नालों मैं चंगा नहीं, बुरा नहीं कोई, ते होरनां नालों ते दूसरिਆਂ नालों असीं बुरे भी नहीं, मेरे तो बुरा होर कोई भी नहीं, असीं दूसरिਆਂ नालों चंगे नहीं बहुते। कि सतगुरु जी ने नाल जुड़ के कहा भी परमेश्वर दे नाल भाव के मन जुड़िया रहे, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, होरनां नालों असीं बहुते चंगे नहीं ते मेरे नालों दूसरिਆਂ नालों असीं बहुते बुरे नहीं। भाव के सुरत मालक वाहिगुरू दे नाल जोड़ के सतगुरु जी ने कहा भाव के परमात्मा दे नाल ही जिहड़ा जुड़िया पिया कि निबेड़ा करन वाला ही परमात्मा है। जिहो जे है परमात्मा तेरे आ, तेनू पता चंगे आ कि माड़े आ, बस तेरे। हरेक नूं पता ही असीं चंगे कि माड़े आ। हरेक नूं दूसरे नूं कहण दे नाल नहीं हो जांदा भी मैं बड़ा चंगा आ जां मैं बुरा आ। काम बंदा बड़े चंगे करदा होवे ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ कही जावे मैं तो बड़ा बुरा आ, ਉਹਨੂੰ पता लग ही जाना काम तू चंगे कर रहा, तू कह रहा मैं बुरा आ, उन्हें कहना नहीं तू चंगा ही है। जां काम करदा होवे बुरे, दूसरिਆਂ ਨੂੰ कही जावे मैं बड़ा चंगा है, उन्होंने पता लग ही जाना भी काम तो तू माड़े कर रहा, उदा कहना चंगा है। तो सब तो वड्डी गल बंदे नूं खुद दा आप पता है। एक तो हुंदा ना जुबान दे नाल जां हत्थां दे नाल काम करके दस देना, जुबान दे नाल आखिया हत्थां दे नाल कीता पता लग जू चंगा है जां माड़ा, पर जिहड़ा मन दे तल उत्ते कर दिता किसी नूं नहीं पता लगना, किसी नूं नहीं पता है मन दे विच की चल रहा है, मन दे नाल किहड़ा कर्म कर दिता है, मन दे विच किहड़े फुरने फुट रहे हैं, किसी नूं नहीं पता। वो कर्म दा किसी नूं पता ही नहीं, वो परमेश्वर नूं पता है। मन दे उत्ते तल उत्ते किहड़े फुरने चल रहे हैं, मन दे विच किहड़ियां विचारां आ रही हैं, मन दे तल उत्ते किहड़े कर्म कर रहे हैं, क्योंकि मन भी कर्म करदा है ना। हत्थां दे नाल कर्म करदे आ, जुबान दे नाल करदे आ, मन भी करदा है। हत्थां दे नाल कीते जुबान नाल बोले बोल पता लग जाणगे, हत्थां नाल कोई काम कर दिता पता लग जू भी काम होया है, फलाणे बंदे ने कर दिता है। जुबान दे नाल आखे बोल पता लग जू ये फलाणे बंदे ने आ बोल बोले सी, पर जिहड़े मन बोल रहे हैं वो किसी नूं नहीं पता लगना मन किहड़े बोल बोल, वो परमात्मा नूं पता है, वो परमेश्वर नूं पता है। इसे करके पातशाह जी किरपा कर रहे ने कि जिहड़ा परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया है, जिन्हें होमैं दा त्याग कर दिता है, जिहड़ा सच्चा चाकर बन गया, पातशाह जी कहंदे इदां जिन्नू जल दे विच भी फिर थल दे विच भी आकाश दे विच भी नज़र आउण लग गया, प्रणवत नानक तारे सोए। पातशाह जी किरपा कर रहे धन गुरु नानक देव महाराज कि इहो जे सेवक नूं परमेश्वर संसार समुंदर दीयां विकारां दीयां लहरां तो बचा के अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखदा, भाव के विकारां दीयां लहरां तो बचा करके पार लंघा दिंदा है संसार समुंदर। ये संसार जिहड़ा है समुंदर है, इहदे अंदर विकारां दीयां लहरां, लोभ दीयां विकारां, काम दीयां लहरां, सब कुछ उठ रहा है, ये अंदर ही हो रहा सब कुछ। संसार के अंदर जिन्ना चिर समा अपना रहना ये सारा कुछ होऊगा। तो कहते जिहड़ा सच्चा चाकर हुंदा ना बन जाता है, गुरु साहब आप उन्होंने विकारां दीयां लहरां तो बचा के पार लंघा दिंदा, उहदी जिंदड़ी लेखे ला दिंदा। इसलिए ये फायदा हो जाता सतगुरु के चरणों के नाल जुड़न दा। कहते जदों सरवर भरिया हुंदा है ना, तो बंदा डुब रहा हुंदा है, बड़ियां आवाज़ां मारदा फलाणिया तू बांह फड़ लै, तू फड़ लै, तू फड़ लै, कोई नहीं फड़दा। उदों कौन फड़दा आ? गुरु साहब फड़दे आ। गुरु साहब पार लंघाउण वाले हैं, परमेश्वर पार लंघाउण वाला है, उहदा नाम ही तारन वाला है। वो परमात्मा कहंदे बांह नहीं छड्डदा, जिहदी बांह परमात्मा ने फड़ ली ना वो कदे डुबदा नहीं है, ते जिन्हें आप ही पल्ला झाड़िया पिया है। जिहड़ा सतगुर दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़िया, समझो कि उन्हें गुरु नानक साहब दा हथ फड़िया होया, सिमरन कर रहा, गुरबाणी पढ़ रहा, सेवा कर रहा, आप ही समझ लवे कि मैं गुरु नानक साहब दा हथ फड़िया होया है। ते जिन्हें गुरबाणी छड्ड दित्ती है, सिमरन ही छड्ड दिता है, गुरु दा दर्शन ही छड्ड दिता है, सेवा ही छड्ड दित्ती है,
ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੱਖੜ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਤਰੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ।